Hi, a very good evening to all of you. I am Rahul Sharma, Assistant Labour Welfare Commissioner Central from Central Labour Service. We are into a series wherein we are trying to identify the important keywords that are essentially to be reproduced into the examination of civil service so that you can score good marks into public administration, which is one of the most famous optional of civil service examination. So far, we have discussed about various thinkers, or in short, I would say that so far we have discussed about classical thinkers. Classical thinkers are the one who have overemphasized upon the non-living aspect of the organization and to some extent have negated the living aspect of the organization. They have emphasized upon structures, positions, hierarchy, supervision, control, coordination, while neglecting the behavioral aspect of the individual working into an organization, the sociological dynamics, the environmental factors which are necessarily to be taken into consideration if the organizational efficiency has to be secured. In today's class, we will be discussing about a great thinker who is revered in the spectrum of public administration a lot. She is one of the few female thinkers of public administration. Her name is Mary Parker Foley. Well, there are some personalities who come into this world and they are a revolution in themselves. She is considered as one of the thinker who was ahead of her times. अपने समय से पहले उन्होंने इस दुनिया के अंदर जन्म ले लिया. She belonged to an era where the classical philosophy was dominant, but she propounded ideas which was primarily directed towards the neoclassical philosophy, which later on was propagated by Elton Mayo, Chester I. Bernard, Herbert Simon, Chris Argyris, Douglas McGregor, Renesas Lakert, and so many other thinkers. Moreover, she has also touched the situational aspect, the contextual aspect, the environmental dynamics, which otherwise was negated into the classical thinkers. Mary Parker Foley has given dynamic administration. Just like Weber had given bureaucratic administration, Fayol, Gulick, Urwick, they had given administrative management theory, Taylor had given scientific management theory, so Mary Parker Foley had given dynamic administration. Dynamic means something which is not still, something which is changing, something which cannot be regarded as static. That is what dynamism is all about. There is some disturbance into the system. That is what is dynamism. We respect Mary Parker Foley for the reason that she was like Dil Chahta Hai movie of Farhan Akhtar, which was in 2002. That movie is considered as a landmark. आप आज भी इस मूवी को देखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ऐसा हो गया है जो बीते हुए जमाने का था. वो मूवी भले ही 2002 में बनाई गई, but it is considered as a movie ahead of its time. समय से पहले बना दी गई. 3 दोस्त गोवा गए, ऐश हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, अपनी लाइफों में बिजी हुए, रीयूनाइट हुए. वही जो आज हो रहा है. आज ट्रैवलिंग का इतना ज्यादा क्रेज है लोगों के अंदर कि दुनिया इधर उधर भाग रही है. अभी रिसेंटली थोड़ा सा लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस को अपलिफ्ट किया गया तो आप देखो मनाली के अंदर एकदम आतंक मच गया है. वहां रूम्स नहीं मिल रहे हैं. टूरिज्म सेक्टर एकदम पीक पे. ऐसी विवियन रिचर्ड्स, जब दुनिया को बैट पकड़ना नहीं आता था सही से, लोग डर डर के खेला करते थे बिना हेलमेट के, तब विवियन रिचर्ड्स ने एग्रेसिव बैटिंग को इंट्रोड्यूस किया इस दुनिया में. बड़े बड़े बॉलर्स, इमरान खान जैसे, जोएल गार्डनर, माइकल होल्डिंग, माल्कम मार्शल, विवियन रिचर्ड्स को देखकर उनके परकच्छे उड़ जाया करते थे. बॉलर्स जो हैं एक दूसरे को बॉल पास किया करते थे कि यार रिचर्ड्स आ रहा है, हम नहीं आएंगे बॉलिंग करने के लिए, बहुत बहुत मारेगा. तो इसी तरीके से there are certain personalities which are ahead of their time. They are born into an era wherein there are fixed parameters, wherein there are predefined standards, but they revolutionize the entire system, the entire procedure. जैसे राजा राम मोहन रॉय, फेमिनिज्म की बातें उस जमाने के अंदर करी जब फेमिनिज्म की डेफिनेशन नहीं आई थी. उस जमाने में फेमिनिज्म की बातें करी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
फीमेल राइट्स के लिए उस जमाने में लड़े जब फीमेल्स को खुद ये नहीं पता था कि उनके भी कुछ राइट्स हैं। तो मैरी पार्कर फोले कुछ ऐसे ही थिंकर्स में से एक रही हैं। मैं इतनी सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द लेडी इन फ्रंट ऑफ यू। शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी वुमेन। जब सारी दुनिया के अंदर लोग भेड़ों की बात करते हैं, देन शी वॉज दैट टिग्रेस अमंग ऑल ऑफ देम, जिसने वहां भेड़ होने के बाद भी भेड़ चाल में ना चल के एक ऐसी फिलॉसफी दी, एक ऐसी आइडियोलॉजी दी जो आने वाले टाइम के अंदर एक बेडरॉक बना फ्यूचर स्टडीज का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो चलो, जैसे कि मैंने आपको कहा, शी वॉज अ लिंक बिटवीन द क्लासिकल एंड द नियो क्लासिकल फॉर द रीजन दैट शी वॉज बॉर्न इन टू एन एरा वेर इन क्लासिकल प्रिंसिपल्स वर डोमिनेंट, स्टैटिक, रिजिड, मैकेनिस्टिक principles were dominant. She came out with ideas which were extremely revolutionary from that time's perspective. तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे आ जाते हैं जो पेपर के अंदर हमें प्रोड्यूस करना है। उसी में मैं थोड़े से कंसेप्चुअल एस्पेक्ट आपको बताऊंगा। मैरी पार्कर फोले ने कुछ डॉक्ट्रिन्स दिए हैं, कुछ लॉज दिए हैं, कुछ फिलॉसफीज दी हैं। हर थिंकर की अपनी फिलॉसफीज हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, फिर टेक्निक्स हैं, फिर स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो मैरी पार्कर फोले ने दिया वो था डॉक्ट्रीन ऑफ इंटरपेनिट्रेशन। उसने एक छोटी सी बात कही कि भाई ऑर्गेनाइजेशन है मैन मटेरियल मेथड। ऑर्गेनाइजेशन इज मैन मटेरियल मेथड, जिसके अंदर मटेरियल और मेथड्स के ऊपर क्लासिकल थिंकर ने ओवर एम्फेसाइज कर दिया है। वो कह रही है इतने की जरूरत ही नहीं है। अगर इंसान अच्छा है, इंसान केपेबल है, उसके पास राइट स्किल है, एप्टीट्यूड है, नॉलेज है, तो ऑर्गेनाइजेशन भले ही मेथडोलॉजी इंफीरियर हो, भले ही मटेरियल सब स्टैंडर्ड हो, उसके बाद भी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को अटेन किया जा सकता है। तो उसका प्राइमरी फोकस ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज के अंदर एफिशिएंसी को अटेन करना है, लाइक एनी अदर थिंकर। वी डू नॉट वांट एन ऑर्गेनाइजेशन जो रिजल्ट्स जो आने वाले 60 साल 70 साल बाद दे। हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट दे दे। एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, हम इसकी बात करते हैं। तो मैरी पार्कर फोले ने कहा कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन, देन गिव लेस एम्फेसिस टू मेथड्स एंड मटेरियल्स एंड एम्फेसाइज मोर अपॉन द ह्यूमन बीइंग। तो उनकी सारी स्टडीज जो है सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डायनामिक्स पे बेस्ड है। तो शी केम आउट विद द आइडिया ऑफ इंटरपेनिट्रेशन। उसने कहा जब भी कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेगा, जब भी कोई बहू ससुराल के अंदर आएगी, तो अपने कुछ बिलीव्स, ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स और आइडियाज को लेकर आएगी। She will interact with the other members of the family, just like a worker will interact with the other fellow employees and management of that company. During that process, there will be sharing of ideas, and there will be interpenetration of thoughts among each other. So that process wherein the thoughts of other people are being shared and interpenetrated into the personality of the bahu or the daughter-in-law or the worker, that process is interpenetration. Now this process is important to understand because the satisfaction of the employee will depend upon the degree of interpenetration that the employee is having into the organization. Secondly, she came out with the idea of doctrine of whole. उसने कहा बहू आई ससुराल में, वर्कर आया ऑर्गेनाइजेशन में। बहू ने ससुराल के व्यू पॉइंट्स को इन्फ्लुएंस किया, ससुराल ने बहू के व्यू पॉइंट को इन्फ्लुएंस किया, और दोनों ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बना दी। एंड दैट न्यू कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर विल डिफाइन व्हाट? विल डिफाइन एफिशिएंसी, विल डिफाइन इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन सिंपल टर्म्स, सचिन तेंदुलकर, मखाया एंटनी, वो बार बार शॉर्ट बॉले डाले जा रहे थे। तेंदुलकर परेशान हो गए कि क्या करें। ही डिस्कवर्ड अ न्यू शॉट, अपर कट। वो बॉल जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाए उसको हल्का सा टिल्ट दिया और पीछे जाके छक्का, पीछे जाके चौका। तो सचिन ने क्रिकेट को इन्फ्लुएंस किया, क्रिकेट ने सचिन को इन्फ्लुएंस किया, और उसके बाद एक कलेक्टिव न्यू काइंड ऑफ शॉट जो है वो डिस्कवर हो पाया, वो है अपर कट। तो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ होल। थर्डली, शी वॉज वेरी क्रिटिकल अबाउट द क्लासिकल फिलॉसफी। और क्यों नहीं भाई, इनकी तो फिलॉसफी ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग प्लस सोशियोलॉजिकल डायनामिक्स प्लस साइकोलॉजिकल डायनामिक्स, एंड क्लासिकल थिंकर्स ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू स्ट्रक्चर्स प्लस फंक्शंस प्लस पोजीशन प्लस हायरार्की। तो ये तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया, जैसे लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच में है। शी क्रिटिसाइज्ड द क्लासिकल थिंकर्स रिगार्डिंग देम एज मैकेनिस्टिक इनटू देयर व्यू पॉइंट्स, स्टैटिक, रिजिड, प्रिंसिपल दैट कैन नॉट बी चेंज्ड।
She said that efficiency is only a mathematical number. How can efficiency be a mathematical number only? We need to see the longevity of the organization as well, its interaction with the dynamism of the environment as well. She said that individual is disrespected in the classical philosophy, that it has been demeaned to mere cog into the giant wheel of production. That's it. बस एक मशीन के छोटे से टुकड़े की तरह है. So she was very critical about the classical thinkers, very critical. Every idea they propounded, मेरी पार्कर फोले डंडा लेके खड़ी हो जाती, ना 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 ये नहीं चलेगा. अच्छा, इंसान को कोई वैल्यू नहीं दोगे? That is what the beauty of a female is. The compassion she carries for the child, that compassion is reflected in all her endeavors into the society. That is why she could recognize that human being needs compassion, human being need emotion, human being needs association, expression, which the classical thinkers failed to identify. They thought that human beings are nothing but cog into the giant wheel of production, which was meaningless. Then she came out with a very beautiful idea of democracy. She said that participatory democracy is better than representative democracy, or in other words, law of coaction is better than law of consent. यहाँ पे जो greater than का symbol है वो मैंने उल्टा बना दिया है. According to her, if the workers will participate into the managerial decisions, if they start taking decisions for their organization, then the ownership of the organization will increase. Then they will be able to associate themselves more to the organizational objectives, or there will be a greater synchronization between the individual objectives of the worker, as they will develop the necessary pride, which is important to generate that satisfaction, so that organizational objectives becomes individual objectives. इतना प्राइड दे दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी अपनी है. जैसे बहू जो है ससुराल में गई, उसके माइंड में दो घर चल रहे हैं, एक उसका मायका, एक उसका ससुराल. शी इज कंफ्यूज्ड, उसका घर कौन सा है. लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेमोक्रेटिक था, छोटे छोटे घर के डिसीजंस में उसकी राय लेना सबने शुरू कर दिया. देन शी गॉट टिल्टेड कि नहीं भाई अब तो ससुराल ही सब कुछ है और हम मायका जो है वहां के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू मेरी पार्कर फोले, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेमोक्रेसी है तो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी ज्यादा होगा. देन शी हैज कम आउट विद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, कुछ छोटे छोटे एस्पेक्ट जो लेटर ऑन रिफ्लेक्ट होंगे. मेरी पार्कर फोले ने एक टॉपिक दिया है, वो है कंफ्लिक्ट मिटिगेशन. यूजुअली कंफ्लिक्ट वाज सीन मोर इनटू नेगेटिव कॉनोटेशन, कि झगड़ा है तो फसाद है और फसाद है तो समस्या है. लेकिन मेरी पार्कर फोले केम आउट विद अ वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ कंफ्लिक्ट. शी सेड दैट कंफ्लिक्ट इज नथिंग बट रजिस्ट्रेशन ऑफ सोशली यूजफुल डिफरेंट आइडियाज. इफ देयर इज कंफ्लिक्ट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वहां पे ग्रो करने की. उस कंफ्लिक्ट से केओस डेवलप होगा, एंड केओस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर talented people. Life में whenever there is chaos, it is an opportunity for talented people. You see Napoleon, France was in chaos. उसको बस उस chaos का फायदा उठा के वहां का राजा बनना था, and he did it very well. India against corruption, there was a movement in 2011. There was a chaos in the nation, and there were intelligent people who capitalized upon that opportunity and revolutionized the entire nation. So she said that conflict by default is not destructive. It is the handling of the conflict which decides whether it will be constructive or destructive. And she came out with 3 strategies which are to be used in order to mitigate the conflict. And those were domination, negotiation and integration. In domination, one side will dominate like classical way, कि मैनेजमेंट ने दबा दिया, सास ने बहू को दबा दिया. नेगोशिएशन, दोनों एक टेबल पे आए, दे स्टार्ट डिस्कसिंग. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में वर्क्स कमेटी बनती है किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर. वहां पर 10 लोग मैनेजमेंट साइड के होते हैं, 10 लोग आपके वर्कर साइड के होते हैं. दोनों टेबल पे बैठ के जो भी इश्यूज हैं उनको नेगोशिएशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इट इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट. लेकिन नेगोशिएशन की एक प्रॉब्लम है कि हर साइड का कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है. सो एमपी फोले सेड दैट द बेस्ट वे ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट इज इंटीग्रेशन. आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो, उन छोटे छोटे पार्ट्स
की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और उन सारे पार्ट्स को एक बार रीयूनाइट कर दो, तो इंटीग्रेशन। ये बड़ी रेवोल्यूशनरी थिंकिंग थी उस टाइम की, कि कोई ये कह रहा है कि झगड़ा जो है वो यूजफुल है, क्योंकि झगड़े को अक्सर लोग नेगेटिवली ही देखते थे। तो कंफ्लिक्ट मिटिगेशन जो है, जो आप लेटर ऑन देखोगे कि बहुत सारे, जैसे मैंने वर्क्स कमेटी आपको बताया, एक स्ट्रक्चर है जहां पे नेगोशिएशन एक एस्पेक्ट है कि वहां नेगोशिएशन और बार्गेनिंग होती है, बट वर्क्स कमेटी की भी फंक्शनिंग ऐसी हो सकती है कि वो वहां पे इंटीग्रेशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दूसरा चीज, ऑर्डर। फोले ने कहा कि जब जब ऑर्डर हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की तरफ आता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होता है, बॉसिज्म वाली फीलिंग आती है सबऑर्डिनेट को। आप ऑर्डर को डीपर्सनलाइज कर दो। ऑर्डर फ्लोज फ्रॉम द सिचुएशन। आप कहो ये ऑर्डर इसलिए नहीं है कि मैं बॉस हूं इसलिए आपको दे रहा हूं, ये ऑर्डर इसलिए है क्योंकि सिचुएशन की डिमांड ये है। व्हेन द सिचुएशन विल डिमांड दैट पर्टिकुलर एक्शन, दैट इज व्हाई दैट ऑर्डर इज बीइंग गिवन। तो यहां पर जब आप ऑर्डर को किसी एक लिविंग बॉस से आइसोलेट करके एक सिचुएशन के ऊपर डाल देते हो, तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी ईगो नहीं आती, वहां पे छोटे छोटे उनके सोशियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं डेवलप होते। एज अ रिजल्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशनल ओनरशिप बढ़ेगी। लीडरशिप, फोले ने कहा कि भाई पोजिशनल लीडरशिप इज अ वेरी नाइव आइडिया, इट इज यूजलेस। Not necessarily in every situation the person occupying that position has the necessary skill, aptitude and knowledge to solve that problem. भाई लीडरशिप का पर्पस है सबको इकट्ठा करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ ले जाना, और अलग अलग सिचुएशंस आएंगी जहां पर जो झुंड है वो अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगेगा। लीडर को उन सारे झुंड को इकट्ठा करके एक तरफ लेकर आना है। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना लीडरशिप का एक इनहेरेंट एस्पेक्ट है। बट पोजिशनल लीडर एक इनकॉम्पिटेंट लीडर है या एक इनकम्प्लीट लीडर है, क्योंकि उसके पास हमेशा हर चीज का सॉल्यूशन है, ये तो पॉसिबल नहीं है। हर कोई फैंटम तो है नहीं, कोई शक्तिमान भी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा जो नीचे आपके सबऑर्डिनेट है उसके पास वो नेसेसरी स्किल सेट है, वो एप्टीट्यूड है। हो सकता है आपका जो सबऑर्डिनेट है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हो। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ऑब्वियसली जब क्राइसिस आएगा तो आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, तो आपका सबऑर्डिनेट लीडर की तरह ज्यादा बेहतर एक्ट कर सकता है बजाय की पोजिशनल लीडरशिप के लिए। तो उसने कहा कि पर्सनैलिटी शुड डोमिनेट पोजीशन व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप। लेकिन शी ऑल्सो सेड दैट इवन दो लीडरशिप इज अ फंक्शन ऑफ सिचुएशन, पोजीशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, अदरवाइज द ऑर्गेनाइजेशनल अनार्की विल बी देयर। सो शी सेड दैट देयर शुड बी अ सर्कुलर लर्निंग so that leader keeps on learning from his or her subordinates and gradually develops that necessary skill set which is required to achieve the organizational success, goals, objectivity, productivity and efficiency. Then she gave the concept of power. Power is ability to get things done. This is what is power. She said power with is better or is superior to power over. Whenever there is a feeling that somebody is trying to assert his or her power over us, then there is a possibility of development of psychological dissatisfaction and sociological conflicts. And when that happens, the organizational will be more busy in resolving the differences than achieving the organizational objectives. So she came out with the concept of coactive power than coercive power. That power should be an asset which must be accessed by everyone. There must not be a feeling of have and have nots when it comes to the exercise of power. According to her, both superiors and subordinates, they must take a collective decision and there must be consultation, dialogue, debate and negotiation before exercising that power. Very revolutionary concept. Again, जहां पर हम ये कहते थे कि भाई सुपर ऑर्डिनेट ने जो कह दिया बस वही करना है, there is no confusion, role and goal clarity. These kind of concepts were introduced by the classical thinkers, but she came out with the philosophy which was completely different. Now responsibility as well, she said that responsibility is a function of situation, and in organization it should be more important that what are we responsible to than to whom are we responsible. अगर जूनियर का ध्यान इस बात पर रह जाएगा कि मुझे अपने सीनियर से एसीआर भरवानी है, जब उसका ध्यान इन सब बातों में ज्यादा लगा रहेगा और इस पे ना लगा रहेगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पब्लिक सर्विस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो शी केम आउट विद द आइडिया
कि वी शुड बी मोर कंसर्न दैट व्हाट वर्क आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर देन व्हाट person are we responsible to. In that situation, our focus will be directed towards improving the dynamics and the aspects of the work than appeasing the boss in the immediate hierarchy or the hierarchy thereof. So she came out with a more cumulative and pluralistic idea of responsibility, which is more collective in nature. कि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट जो है उसी की जिम्मेवारी है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोल्स को अटेन करना, बल्कि जो वर्कर्स हैं वो भी अपने आप को मैनेजमेंट से एसोसिएट करके कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करके एक प्लूरलिस्टिक वे के अंदर टारगेट्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करें. अथॉरिटी के अंदर शी गेव अ सिमिलर कंसेप्ट दैट अथॉरिटी शुड नॉट बी इंडिविजुअलिस्टिक एंड आइसोलेटेड. इट शुड लाई विद द जॉब, स्टे विद द जॉब. अगर आप प्राइमरीली देखो, जो भी सारे बॉसी कैरेक्टर्स थे आपके क्लासिकल थिंकर्स के अंदर, फोले ने उन सारे कैरेक्टर्स को ओवरकम करने की कोशिश करी है. उसने कहा अथॉरिटी लाइज विद द जॉब, कि जॉब करने के लिए हमने अथॉरिटी एक्सरसाइज करी, एंड स्टेज विद द जॉब, और उसी के साथ रह गई. ये नहीं है कि ऑफिस के बाहर जो है ब्यूरोक्रेट जो है उस अथॉरिटी को लेके घूम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. वो अथॉरिटी बस उतना काम करने के लिए दी गई थी, उतना काम किया और छुट्टी. फिर कंट्रोल, सिचुएशन. कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ सिचुएशन. फोले सेड देयर शुड बी फैक्ट कंट्रोल, नॉट मैन कंट्रोल. क्लासिकल थिंकर्स ने बहुत ज्यादा सुपरविजन, मॉनिटरिंग, अपने सबऑर्डिनेट के बिहेवियर या कैरेक्टर्स को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करी. लेकिन फोले का यह मानना था कि कंट्रोल जो है, कंट्रोल इज नथिंग, बार बार ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ मूव करना. इट शुड बी फैक्ट कंट्रोल. सुपर इंपोज्ड नहीं होना चाहिए, कोरिलेटिव होना चाहिए. सारे फैक्ट्स को एनालाइज करो और तब कंट्रोल करने की कोशिश करो. अपने इमोशंस पे मत जाओ, या नीचे वाले जो एम्प्लॉइज उनके इमोशंस पे मत जाओ. आप फैक्ट्स को कंसीडर करो, बिकॉज फैक्ट्स विल ब्रिंग यू मोर टुवर्ड्स द रियलिटी. हम आगे जाके हर्बर्ट साइमन का फैक्ट वैल्यू डाइकोटोमी पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये कंसेप्ट जो है आगे जाके प्रोग्रेसिव होके एक बेटर कंसेप्ट के अंदर इवॉल्व हो पाया. और फोले ने कहा कि ये जो कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन का, ये सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. कि धीरे धीरे एम्प्लॉइज जहां देखें कि वो थोड़ा सा अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से डाइग्रेस हो रहे हैं, वो तुरंत वापस उसको करेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ अपने आप को डायरेक्ट कर लें. दैट इज वाई फोले सेड दैट मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक इमेच्योर साइकोलॉजिस्ट की तरह है. जो सास है उसको बहू की साइकोलॉजी को समझना है, कि बहू को ऐसा लगता है कि सास बॉस की तरह बिहेव कर रही है, तो डीपर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर कर दो कि भैया मैं ये ऑर्डर नहीं दे रही, सिचुएशन ऐसी है, घर के हालात ऐसे हैं कि ये ऑर्डर देना पड़ रहा है. सब्जी लाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब्जी लाके मुझे बताना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं सब्जी ले आई हूं. अथॉरिटी जो है, घर के जो डिसीजंस हैं या हम कोई भी जो काम कर रहे हैं, अगर खाना भी बना रहे हैं, तो इट शुड बी प्लूरलिस्टिक इन नेचर, नॉट इंडिविजुअलिस्टिक. तो बेसिकली मैरी पार्कर फोले की जितनी भी फिलॉसफी है, उसका प्राइमरी पर्पस ये था दैट शी वाज मोर अ सिचुएशनल थिंकर. दैट इज व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग दैट डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन, a kind of administration wherein there is confusion, chaos, and that equilibrium is yet to be attained. And since there is so much dynamism into the environment, so much dynamism into the situation, there cannot be fixed set of principles which will govern the functioning of the organization. That is why Mary Parker Folle is considered as a thinker born into the present but having foresight of the future. कि कंट्रोल जो है वो फैक्ट कंट्रोल होना चाहिए. भैया एविडेंसेस लेकर आओ, क्या इशू है. मैन कंट्रोल नहीं कि आप बार बार इंसान के पीछे पड़ जाओ कि इसकी गलती है, इसकी गलती है. आप देखो वो घर से झगड़ा करके आया है, उस फैक्ट को जानो, उसके लिए वहां पे काउंसलिंग रखवाओ और तब ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को अटेन करो. ये नहीं कि वो घर से झगड़ा करके आया, अच्छा काम नहीं कर पा रहा, आप जो है डंडा लेके उसको मारने के लिए शुरू हो गए. कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये नहीं चलेगा. और ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए जो ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है, कि मैनेजर्स एंड वर्कर्स इतने ज्यादा एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं, कि ऐसा बॉनहोमी डेवलप हो चुका है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इसका काम है, उसका काम है. जहां काम में डेफिशिएंसी आई, हर बंदा छलांग मार के रेडी है ऑर्गेनाइजेशनल के लिए अपनी जान देने को. ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ कंट्रोल,
कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में अगर कोई शॉर्टेज है तो टेक्निकल डिपार्टमेंट का बंदा जाके वहां पे फटाफट काम करके मेक श्योर कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, ये प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट बना दिए कि पावर ऐसे मत करो कि चंद लोग जो हैं पावर को एक्सेस कर रहे हैं, हैव और हैव नॉट्स के डिफरेंसेस बना दिए हैं हमने। ऐसा नहीं करना है। पावर जो फ्लो होती है डिसीजन मेकिंग से, आप उसको सबके साथ एसोसिएट करो। दिस इज व्हाट इज पावर। अथॉरिटी, दिस इज व्हाट इज अथॉरिटी। प्लूरलिस्टिक, क्यूमुलेटिव। So this is what basically is the philosophy of Mary Parker Fuller. She came out with the idea of dynamic administration. Later on we will be discussing about the criticism that was offered to Mary Parker Fuller for her revolutionary ideas as well. दुनिया में जितने भी महान लोग हैं वो उनको कोई ना कोई बदनामी जरूर मिलती है। मैरी पार्कर फुले भी कैसे बच सकती थी, क्योंकि कैप्टन जैक स्पैरो हैज सेड दैट बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो but she is a link between the classical and the neoclassical. In the future lectures we'll be discussing either the questions or we'll come out with the neoclassical thinkers philosophy, particularly Elton Mayo, Chester I. Bernard, Herbert Simon. Then we'll move on to the participative management thinkers, Chris Argyris, Douglas McGregor, Renesas Lickard. Then motivational theory, leadership theories, the aspect of behavioralism, communication and various other dimensions of public administration. So till then, a very good night to all of you and hope we meet soon into the future. Thank you so much.